So now we will be starting our daily Bhagavad Gita session. Here I will share my screen and we will start. Okay. Yes, we are going to start Bhagavad Gita from very beginning. So 1 minute. So everybody is able to hear the see my screen now. Yes. Okay. So yesterday we were reading. Can anybody tell कहाँ तक हम लोग कवर किए थे? There are personalities. Okay. So, okay. Yeah, from 1.11 till we have covered in last 2-3 classes. Now we will be reading from Bhagavad Gita 1.11. Okay. So anybody wants to read the sloka? तो कोई पढ़ना चाहेंगे क्या श्लोका? हाँ, निधि निधि अग्रवाल आप शुरू करो. अन्य कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोका भगवद गीता 1.11? वो लोग आगे हाँ, थोड़े जोर से पढ़िए. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ. ठीक है. अयानेषु च सर्वेषु. यहाँ पे करोगे अब? यहाँ पे अभी करोगे ना? लेक्चर है क्या? कब आओगे? ऐसा है. सो कब, जब आप फ्री हो ना तब आके इधर से करना. ठीक है? कब करोगे? संडे को फुल डे रहेंगे तब कर लेंगे. हाँ, तब करना. ठीक है. Lecture is going on? Yes, lecture is going on. Okay. So sorry for the disturbance. So we are starting now. Okay. अयानेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः विषमम् एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. Can anybody read the translation? Yes, Ridhima. कुछ आप बोलना चाहते हैं? Yes, sir. Sir, when was the last class held? Because we were added today only in the group, so we don't know. Like, was it before? Your last class recordings I will share, but Yes, sir. okay, I will share. I will share. Okay. Because this is 1.11 and we haven't done 1.1 also. So for अच्छा, that we. okay. So Yes, we sir. can start from here, and you can. I will share the recordings. Okay. No? Yes. Thank you, sir. So all of you must now give full support to grandfather Vishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. Okay. So here, purport. Can anybody read? कोई इसका जो एक्सप्लेनेशन है कोई पढ़ना चाहेंगे? कौन कौन है यहाँ पे देखता हूँ.
हाँ, आद्या, आद्या आप रीडिंग कर सकते हो। Okay, sir. Purport. Duryodhana, after praising the powers of Bhisma, further considered that others might think that they had been considered less important. So, in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhisma Deva was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. The Yodhana clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhismadeva. He was confident of the full support and Bhismadeva and Drona's career in the battle, because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in a helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these journals would now completely give it up, as they had done during the gambling performance. Okay, so here we will explain the thing. Okay, na? So Duryodhana, after praising the prowess of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So, okay, so here Bhishma Dev is a brahmachari, and his age when this battle of Kurukshetra was being fought, his age was 400 years. Okay, and unke paas he was having the benediction, उनके पास एक आशीर्वाद था कि he can इच्छा मृत्यु means whenever he likes, then only death will come to him. Otherwise if he don't desire death, death cannot come to him. और ऐसा भी है कि whenever if his body would touch the ground, then he cannot die. ऐसा उनका एक blessings था. And he is गंगा पुत्र भीष्मा, means गंगा देवी जो है उनका पुत्र है भीष्मदेव. Okay, so here he is Duryodhana, he is glorifying Bhishmadev, and but he is thinking that if only Bhishmadev is glorified and others may feel that we are very less important, so why we should fight? We can leave the fight, है ना? ऐसे कोई सोच सकता है. But here he also wanted to glorify the others also. So Bhishmadev is the greatest hero, but he was an old man. अभी बहुत वृद्ध हो चुके हैं ना. So everyone must, so सबको बोल रहे कि everyone should give him protection from all the sides, so that when he is engaged in the fight, so जब वो समझ लीजिए एक साइड में वो फाइट करे, दूसरे साइड से कोई एनिमी आके उनको कोई अटैक ना कर दे, इसलिए सो एक्चुअली ही वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो. महारथी बोला जाता है उनको. महारथी मीन्स he can fight with thousands of soldiers at a time. So there are many classes of warriors, but these Maharathis, they are very special warriors, because one person, one man army, आपने सुना ही होगा. So one person can fight with thousands of soldiers, thousands of enemies. It is like that. Okay, so it was important that everybody protect Bhishmadev so that he can fight without any disturbances. So Duryodhana यहाँ पे बोल रहे कि our victory is हमारा जो victory is guaranteed because of the presence of Bhishmadev. Bhishmadev है on the part of Kurus. So दुर्योधन को एक confidence feel हो रहा है कि Bhishmadev is present, so we will be victorious. But भगवद गीता में ही कुछ श्लोकास, कुछ क्लासेस, एक क्लास पहले का जो क्लास था उसमें बताया गया कि if you don't take part of dharma, then it is you will be thrown out like
weeds are thrown out from the paddy fields. Okay, जैसे पैडी फील्ड होते हैं, जैसे धान के खेत होते हैं, धान के खेत में क्या होते हैं, वीड्स भी रहते हैं, तो वीड्स टेक अवे द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट इज अवेलेबल फॉर द पैडीज. ओके, सो वीड्स को क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं. सो ऐसे ही जो है दिस कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड जो है, इट इज known as dharma kshetra because many sadhus, many saints, they have performed various yaggas, sacrifices, many things in this place. So it is known as dharma kshetra. And personally, the father of religion, Krishna, he is present in this place on the side of Pandavas. And on the side of Pandavas, he is personally present. Okay, so दुर्योधन जो सोच रहे कि भीष्मदेव मेरे साइड में है तो हम लोग जीत सकते हैं, बट इट इज नॉट द केस बिकॉज victory is always with dharma, and where there is Krishna, the father of religion, is on the opposite side, how there can be victory of the crooked Duryodhana, है ना? It is not possible. But वो सोच रहे कि on my side Bhishmadev is present, Dronacharya is present, so we will be victorious, but that is not the case. Okay, na? So here what is being told, he was confident of the full support of Bhishma Dev and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Okay, so यहाँ पे जो है, he is telling that when द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहे थे, तो तब भीष्मदेव है और द्रोणाचार्य है, बहुत ही they are senior most members of the Kuru dynasty at that time. So Dushashan, when he was taking the sari of Draupadi to make her naked, so that time these two persons, great personalities, Dronacharya and Bhishmadev, they never uttered a single word that you are doing wrong. ऐसे नहीं बोला वो, है ना? So ये जो है, our acharyas, they say that it was a greatest. अगर पाप करते हुए आपको देखता है, so you should always protest and you should take side of dharma. ऐसे नहीं किया था Bhishma and Dronacharya. That's why they had to die in the battlefield of Kurukshetra. है ना? भीष्म देव को भी मारना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी मारना पड़ा, because they were taking side of अधर्म. Okay, so यहाँ पे बोल रहे कि although they had affection, Pandavas, they have affection for Pandavas. जो अर्जुना है, so Arjuna was the one of the greatest student of Dronacharya. Okay, and Bhishmadev is like the grandfather of the Pandavas. Pandavas are this Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadev. They are the Pandavas. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहे कि although he knew that the two generals, तो उनके अफेक्शन तो है, प्रेम है, बिकॉज बहुत ही फैमिली मेंबर्स है, बट एज दे डिडेंट, जैसे वो जो जो अपराध हो रहा था, पाप हो रहे थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब वो चुप रहे. अभी भी जो है ये उनके साइड देंगे, और वो जब साइड दिया है, तब इफ यू टेक साइड ऑफ अधर्म देन डिस्ट्रक्शन इज वेटिंग फॉर यू, लाइक दैट, है ना? So we will be reading now text number 12. Okay. So कोई इसका जो है संस्कृत श्लोक का, can anybody read? आराध्या, आप पढ़ना चाहेंगे? So many participants are there, like राजवर्धन, आप पढ़ना चाहेंगे?
ओके मैं ही पढ़ता हूँ। तस्य संजानयं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्योच्चै शंखं दद्मु प्रतापवम्। सो इसका जो मीनिंग है, देन भीष्मा द ग्रेट वैलियंट ग्रैंडसायर of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. Okay, so यहाँ पे बोल रहे कि भीष्मा is one of the greatest fighters of Kuru dynasty, and he had never and ever he had lost any battlefield. कोई भी बैटल में जब भी वो युद्ध करने जाते थे, एक भी बैटल वो कभी हारे नहीं थे भीष्मदेव, ऐसा उनका, एंड ही वाज वेरी पावरफुल। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका शंख बजा रहे है ना, एंड दैट वाज द साउंड लाइक ए रोर ऑफ ए लायन, जैसे एक लायन गर्जना करते हैं, ऐसे ही उनका जो शंख ध्वनि जो है वैसा है, ऐसा था। एंड इट वाज गिविंग जॉय टू दुर्योधना। तो अभी जो इसका परपॉट कोई पढ़ना चाहेंगे? रिधिमा? हाँ The पढ़िए। grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson, Duryodhana. And out of his natural comparison for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spread in that connection. So here, so I will be explaining the purport. So here it is known as the grandsire of the Kuru dynasty, means one of the eldest personality of the Kuru dynasty. So समझ पा रहे थे कि दुर्योधन was feeling joy, and out of his national compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly. So यहाँ पे बोल रहे कि Duryodhana, he is taking part of adharma, but as a natural compassion, means, so it is like that ki because our Bhishma Dev is taking side of Duryodhana, so he tried to cheer him up. उनको थोड़ा confidence देना चाह रहे थे कि so उन्होंने अच्छे से blow किया उनके शंख को, है ना। But here it is said that by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because उनके पास, सो उनको बोल रहे कि सो यहाँ पे बता जा रहे कि although, so he is cheering दुर्योधन जो है, जो कौरव के, he is the eldest brother, and that time during the fight he was acting as the king के रूप में वो रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, एज ए किंग भी बोल सकते। सो हेयर जो है, बिकॉज कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनालिटी who is the father of religion, he is on the side of opposite side with the Pandavas, so they cannot, when there is Krishna on any one side, so he will be always victorious. Okay, अगर कृष्ण जिनके साइड में है वही विक्टोरी प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते, है ना। सो अभी जो है हम लोग भगवत गीता 1.13 पढ़ेंगे, ठीक है। कोई इसका श्लोका पढ़ना चाहेंगे?
केतव आप पढ़ना चाहेंगे? कोई भी रैंडमली सर। कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ सर मैंने पढ़िए मतलब पढ़िए। डन किया, तो आप स्टार्टिंग से शॉर्ट में मुझे एक्सप्लेन करो ना। हाँ हाँ आप क्या करिए, ये श्लोक पढ़िए और रिकॉर्डेड सेशंस में आपको सेंड करूंगा, ठीक है ना? ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ बताइए। Which chapter is it? इट इज 1.13। आप लोग जो है ना, यू कैन सी द स्क्रीन, स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। Okay, sir. हाँ। तथा शंखश्च वीर्यश्च पवा पानावानक गोमुखः सहसैवा या हन्यन्ता सा शब्दस्तु मूलो भवत्। सो हियर, सो इट इज अ, क्या बोलते हैं उसको, वो दिया जा रहा है, दैट इज the scene of battlefield is being described here. So जब there is conch shells, शंख ध्वनि हो रहे थे, and there is drums बज रहे थे, ठीक है, trumpets, bugles, horns, okay, so many of them are, उसका शंख ध्वनि हो रहे थे ना, all are getting beaten this musical instruments, and the sound was like very tumultuous, means बहुत ही chaos sound जो बैटलफील्ड में होता है वो दिखाई दे रहा था। तथा श्वेतेर हरेर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः। So here, can anyone read the translation? हाँ केतब पढ़िए। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conchs. Yes. So here, both Lord Krishna and Arjuna, they are also present, and जो अर्जुना का जो है चैरियट है, इट वाज गिवन बाय अग्निदेव, ओके, अग्निदेव उनको चैरियट दिया था, एंड ह्यूज हॉर्सेस आर वाइट, एंड बोथ ऑफ देम साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शल्स, मींस दिव्य जो है, दीस आर दिव्य कॉन्शल्स, ओके, उसको क्या कर रहे, साउंड, इट इज बीइंग साउंडेड बाय देम, ओके। इन कॉन्ट्रास्ट विद द conch ब्लोन, अच्छा ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़िए, आद्य, आद्य आप पढ़िए। Okay. In contrast with the conch shell blown by Bhisma Deva, the conch shells in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental. The sounding of the transcendental conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yesam Pakshe Janardhana. Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone with her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. Yes, so we are getting very nice description of the battlefield, okay। अभी जो है, in contrast with the conch shell blown by भीष्म देव, so भीष्म देव जो conch shell बजाए थे, उसके कंपैरिजन में द conch shell मीन्स जो शंख है,
जो कृष्ण और अर्जुन के हाथ में है, दे आर because they are described as transcendental means दिव्य शंख है, दिव्य इसलिए बोला गया because they are on the side of dharma. and Bhishma Dev, how powerful his shank may be, उसको बोला गया कि it is roaring like a lion but it is on the side of adharma, so उसको ज्यादा it was not important. but Krishna and Arjuna, they are taking side of dharma, so उनके जो conch shells है, जो शंख है, उनको दिव्य बोला गया, ठीक है. सो उनके जब ये कॉन्शल्स बजाए गए, तब उनका जो ध्वनि निकला, ठीक है, द साउंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शल्स इंडिकेटेड दैट देयर वाज नो होप ऑफ विक्ट्री ऑन द अदर साइड बिकॉज कृष्ण वाज ऑन द साइड ऑफ पांडवस. सो जब ये शंख ध्वनि हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ द पांडवस, देन असुर जो the opposite side, when they heard this sound, they could understand that they cannot win against the Pandavas because they are taking side of dharma. Okay. Jayastu Pandu Putranam Yasham Pakshe Janardanaha. Wherever the sons of Pandu, so यहाँ पे बोल रहे कि victory is with the Pandus. Okay, जो पांडु पुत्र है, इनको ही विक्टरी मिलेगा बिकॉज लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑन देयर साइड. ओके. एंड वेर एवर द लॉर्ड इज प्रेजेंट, तो भगवान को क्या बोला जाता है? लक्ष्मीपति बोला जाता है, माधव बोला जाता है. सो जब वेर एवर द लॉर्ड इज प्रेजेंट, जहां पे कृष्ण इज प्रेजेंट, देन देयर द गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी इज ऑल्सो प्रेजेंट बिकॉज ही डजंट लीव अ सिंगल मोमेंट विदाउट हर हस्बैंड. ओके. तो जो विक्टरी एंड फॉर्चून आर ऑलवेज वेटिंग अर्जुना. से यहाँ पे बोल रहे कि अर्जुना विल विन बिकॉज कृष्ण वाज ऑन हिज साइड एज वेल एज who is on his as well as fortune because wherever there is Krishna there is opulence, there is means fortune is there because Lakshmi ji she represents good fortune for everyone. Okay na. So victory and fortune is waiting Arjuna. So अब ऐसे ही होता है जब एक कुरुक्षेत्र का बैटल जब खत्म होता है, आप देख पाते कि अर्जुन बिकेम द एम्पेरर ऑफ द होल वर्ल्ड. ओके. पहले अभी देखिए हमारा जो कंट्री है, इट इज हमारा प्लेनेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए, अमेरिका, so many Britain, England, Iceland, Greenland, so many places they are divided. But that time before 5,000 years ago, one king will rule the whole planet, and Arjuna, his Yudhishthir Maharaj, his elder brother, became the emperor of the whole world. ये बैटलफील्ड के बाद हुआ, जब ये जो हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, बिकॉज कृष्णा वाज देयर, सो दैट्स व्हाई दे ओन, है ना, वो जीत पाए थे ये. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि द चैरियट ऑन व्हिच द चैरियट ऑफ अर्जुना इज गिवन बाय अग्निदेव, फायर गॉड. अग्निदेव दिए थे ये चैरियट को. एंड दिस चैरियट मीन्स उनका जो रथ था, इट इज एबल टू कॉन्कर ऑल द मीन्स ऑल द साइड्स. जहां पे भी जाएंगे वो विजयी होंगे. ही विल नेवर लूज एनी बैटल इफ ही इज ऑन दिस चैरियट. ये रथ के ऊपर जो भी रहेगा वो कभी भी कोई भी बैटल नहीं हारेगा. ये जो है बेनेडिक्शन, आशीर्वाद था किसका? सन अग्निदेव का आशीर्वाद है. ओके. सो एनीबॉडी विल रीड भगवत देन 1.15. कोई इसका श्लोक पढ़ना चाहेंगे? किसी को संस्कृत आता है? कोई पढ़ेंगे इस श्लोक का? अच्छा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है. पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः.
सो इसका जो है ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे? हाँ केतव पढ़िए। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanga. Arjuna blew his Devadatta, and Bhima, the voracious eater and the performer of Herculean tasks, blew his horrific conch shell called Pandra. ओके, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि लॉर्ड कृष्ण का जो है शंख है उसका नाम पता चल रहा है अभी, है ना। यू कैन नोट इट डाउन। आप लोग जब क्लासेस में बैठते हैं, अरे कौन कर रहे है ना, क्लासेस में जब बैठते हैं, इसको थोड़ा हटाइए से, मत करिए ऐसे। तो पंचजन्य जो है, द कॉन्ग शेल मीन्स जो भगवान के जो है शंख है उसका नाम पता चल रहा है अभी हमें, है ना। दैट इज पांचजन्य। एंड अर्जुन का जो है उसको क्या बोला जा रहा है? देवदत्त। एंड भीमा, भीमा को बोला गया कि वोरेशियस ईटर मीन्स वो बहुत खाते रहते, ठीक है। ऐसे इतना खाते हैं कि कोई नहीं खा सकता उनके जैसा। एंड वो खाते भी है और बहुत बड़े बड़े टास्क भी परफॉर्म करते हैं। और उनका जो शंख है उसका नाम भी हमें पता चल रहा है, दैट इज पौंड्रा। तो सर कृष्ण, मुझे नहीं आया समझ। हाँ इसका मतलब है कि कृष्ण जो है उनका शंख का नाम था पंचजन्य। अर्जुन के जो शंख है उसका नाम है देवदत्त। एंड भीष्म के जो भीमा, भीमा उनके जो है शंख का नाम क्या है? पौंड्र। ठीक है। सो अभी इसका मीनिंग कौन पढ़ेगा? परपॉट एक्सप्लेनेशन कौन पढ़ेंगे? May I? यस पढ़िए। Lord Krishna is referred to as Harsina in the verse because he is owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalities cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious and describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs, describe all living their senses, but he directs in the term of the surrender of the living entity, and in the case of pure devotive, he directly controls the senses. Here, on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Harsina, the old as the ऋषिकेश का, हर्षेना नहीं, ये जो है ऋषिकेश है, हिज पर्टिकुलर नेम ऑफ ऋषिकेश। Rishikesh, the Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Sudhana because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudeva because he appeared to the son of Vasudeva. His name is Devaki Nandana because he accepted Devaki of his mother. His name is Yashoda Nandana because he awarded his childhood pastimes to Yasoda at Vrindavan. His name is Partha Sarathi because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna, ओके ओके, अभी जो है ना ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते, ठीक है। yes, सो हियर लॉर्ड कृष्ण इज रेफर्ड टू एज ऋषिकेश। तो यहाँ पे भगवान को क्या बोला जा रहा है? वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश मीन्स हु इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस और हु इज द ओनर ऑफ द सेंसेस, ठीक है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो शरीर है इसमें जो भी सेंसेस है, लाइक आईज आर देयर, ईयर्स आर देयर, आवर hands are there, legs are there, so nose is there, mouth is there, all these senses, the owner is the supreme lord. Okay, so भगवान इसका ओनर है एंड भगवान इसके ओनर है। क्यों? बिकॉज उनको बोला गया कि ऋषिकेशा इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। जो शास्त्र में बोला गया कि वी शुड यूटिलाइज आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की सेवा में हमें हमारा सेंसेस को लगाना चाहिए। जैसे आंखों से क्या कर सकते हैं?
आंखों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग वी कैन डू विथ आवर आईज इज वी कैन सी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. जो भगवान के, when you will visit our ISKCON temple, we have very beautiful deities. भगवान के सुंदर deities है, मूर्ति है. So you can see with your eyes the beautiful form of the Lord. Okay. So I request that if it is possible, all the students, you can open the video. That will give us encouragement to take the class nicely. So agar it is possible, you can open the video, है ना? Okay, हाँ. So Lord Krishna is referred to as Rishikesh. Okay, because the living entities are part and parcels of him. Therefore, the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. Okay, so हम जो क्या है, हम लोग भगवान के अंश है, ठीक है. और हमारा साइज जो भगवत गीता में बोला गया, दैट इज आपके जो हेयर है, एक सिर से एक हेयर आप निकाल सकते हो, और उसको क्या करिए, उसका जो टिप है, दैट टिप ऑफ हेयर यू कट इनटू 10,000th part. Okay, जब आप अगर when you do 10,000 part of the tip of your hair, that is the size of yourself, and you are where you are sitting. You are sitting in your heart. And in your heart there are two persons. One is Paramatma and one is Krishna. Okay, so living entities are part and parcel of him. The Lord is situated in the hearts of all living entities. Okay, so भगवान सबके हृदय में है. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे और भगवान उसको देखेगा नहीं, है ना. He is always watching all our activities. Okay, so यहाँ पे बोला जा रहा है कि in case of pure devotee, he directly control the senses. So here you can see that. हृदय मतलब हाँ, अभी बताएंगे कि जो भी क्वेश्चंस है ना, when we will complete the lecture, we will give 5 minutes time for the questions, then time you can ask. Okay na? हाँ. So here the Lord situated in the hearts of all living entities direct their senses. So उनको ऋषिकेश बोला जाता है because he is the master of our senses. So भगवान के अलग अलग नाम है, जैसे उनका नाम मधुसूदन है. Why मधुसूदन? Because he killed जो एक असुर था, ठीक है, डेमन था, उसको क्या किए थे, he killed the demon मधु, तो उनका नाम हो गया मधुसूदन. मधुसूदन मीन्स द किलर ऑफ द डेमन मधु. ओके, तो उनके नाम गोविंद भी है. गोविंद इसलिए है बिकॉज ही गिव्स प्लेजर टू द काउज, है ना, एंड द सेंसेस. भगवान क्या करते हैं, जो गाय है, गाय को, गौ माता को क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं. गोविंद. So that's why his name is Govinda. And to the senses, हमारे जो भी senses है, when we will utilize these senses in the service of the Lord, he will also, तब आपको मिलेगा, you will also get satisfaction of the senses. जैसे हम आंखों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं, कानों से क्या कर सकते हैं, we can hear the pastimes of the Lord. मीन्स भगवान के जो भी लीलाएं है, सो कान से बहुत कुछ कर सकते हैं, बट द मोस्ट टॉप मोस्ट थिंग व्हाट इज दैट, दैट इज हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. सो भगवान के बारे में सुनना, दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. भगवान, हमारे भगवान, टू हियर अबाउट द लॉर्ड, ठीक है. बिकॉज व्हाट आर वी आर स्पिरिट सोल्स. ओके, हम कौन है, हम आत्मा है, ठीक है. जैसे शास्त्र में बोला गया कि देयर इज अ केज and in the cage there is a bird. अगर आप सिर्फ केज को अच्छे से बाहर से डेकोरेट करते रहो और अंदर जो पक्षी है उसको कुछ खाना ना दो, तो उसका क्या होगा, मर जाएगा. हाँ, he will die. That is the thing with us. We are not this body. We are the spirit soul who is encaged in this body. ये जो शरीर है, it is like the cage, and the bird, you yourself is the spirit soul who is there in this cage of this body. Okay,
सो उसका खाना क्या है? शरीर के लिए तो खाना राइस दाल सब्जी चपाती ये है, ठीक है। सो शरीर के लिए बहुत कुछ करते, वी डू एक्सरसाइजेस, वी टेक साउंड स्लीप, we take very nice nutritious diet, okay, but that is Mr. for the केज cage. मतलब जेल ना. Yeah, that is for the cage means, yes, वो जो बोला है सही बोला, बट इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो केज जो है, केज से बाहर से हम लोग उसको वी आर डेकोरेटिंग द केज, बट व्हाट इज द विद द बर्ड जो अंदर बैठे, उसके लिए खाना क्या है? उसके लिए जो खाना है, दैट इज द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. When we chant the names of the Lord, that is the food for the spirit soul. When we hear the pastimes of the Lord, that is the food for the spirit soul. When we serve the Lord, जैसे हम क्या कर सकते हैं, भगवान के लिए माला बना सकते हैं, भगवान की मंदिर का अच्छे से सफाई कर सकते हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। So these services, these are the food for the soul, okay. सेवा, हियरिंग द पास्ट टाइम्स, भगवान के बारे में सुनना, है ना, भगवान की नामों का जप करना, ठीक है। सो ऐसे करने से क्या मिलेगा? आवर सोल विल ऑल्सो बी हैप्पी, है ना। एंड बिकॉज देखो, जब एक मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, तब मछली क्या होते है, तड़पते रहता है, ठीक है, और मर जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशन इज विथ आवर सेल्फ। बट ये जो सिचुएशन है, जब व्हेन वी गिव स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, जैसे हियरिंग चैंटिंग, जब ये स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, so our spirit soul will also become happy just like the fish, okay ना। तो यहाँ पे वासुदेव बोला गया, his name is वासुदेवा because he is the son of वासुदेव and देवकी. so उनको देवकी नंदन बोला गया because his mother is देवकी. उनको यशोदा नंदन बोला गया, ठीक है, because he gave his childhood pastime. so कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ था, बट उसके बाद जो वासुदेव है उनको वृंदावन में लेके आ गए थे, ठीक है। तो वृंदावन में जब लेके आ गए थे, तो उनका नाम क्या पर, वो यशोदा माता के पास ही था। अभी जो यशोदा माता वॉज नॉट हिज रियल मदर, बट उनको उनका टेक केयर करते थे ना, बट वो उनके माता जी को चाइल्डहुड पास टाइम्स ही ऑफर्ड टू यशोदा, ठीक है ना। मीन्स एज ए बच्चा, यशोदा के बच्चा के रूप में उधर वृंदावन में रहे थे बहुत साल, है ना। तो उनको पार्थ सारथी बोला गया बिकॉज ही बिकेम द सारथी ऑफ अर्जुना ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। एंड उनको ऋषिकेश बोला गया बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ आवर सेंसेस। अभी कोई पढ़ना चाहेंगे? May I read? यस यस। Arjuna is referred to as Dhananjaya in the verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as Vrakodra because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidamba, so that particularly types of conch shell blown by the different personalities on the side of Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle, and that was message announced by the sounds of the conch shells. सो हियर अर्जुन के एक नाम हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। सो अर्जुन का जो नाम है दैट इज धनंजय। धनंजय मीन्स जो धन को विजय करके लाते हैं, बट वो कैसे लाए थे? ही वॉज फाइटिंग, है ना, ही वॉज फाइटिंग फॉर कहीं भी जाते जहाँ पे अधर्म का बोलबाला रहता है, तो ही यूज टू फाइट विथ अधर्म किंग्स, एंड वहां पे जो है उसको डिफीट करते थे, एंड वहां पे धर्म की स्थापना करते थे, है ना। और जो युधिष्ठिर जो है उनके लिए बाहर से क्या लेके आते थे? धन लेके आते थे। क्योंकि वो उनके एरिया में आती थी तो इसलिए वो मतलब उनसे झगड़ा करते थे. हाँ अभी, हाँ ठीक है। सो भीमा इज नोन एज ब्रिकोदरा। भीमा को ब्रिकोदरा बोला गया बिकॉज भीमा कुड
ईड, भीमा क्या कर सकते हैं, वो बहुत खा सकते हैं, ठीक है, उनको इसलिए ब्रिकोदर बोला गया। एंड वो बहुत सारे अलग अलग वो भी करते थे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे परफॉर्म मीन्स हरक्यूलियन टास्क ही कुड परफॉर्म, दैट इज लाइक किलिंग ऑफ हिडिम्बा। हिडिम्बा एक राक्षस था, उसका वध किया था भीम, है ना। सो अभी जो बैटलफील्ड में क्या हो रहा है कि जब ये देख रहे कि द कॉन्शल वाज बीइंग ब्लोन, देन the parties on the side of Pandavas, they were feeling very encouraging. Okay. So on the other side, there was no such credit, nor the presence of Lord Krishna. So other side में क्या था, जब उनका शंख ध्वनि हो रहे थे, there was no such credits. But on the side of Pandavas, there was presence of Krishna, and so they are feeling very much encouraged by the sounds of conch shells. Okay. ओके, अभी जो क्या करेंगे हम लोग ना, एक क्या बोलते हैं, दामोदर अष्टकम वी विल रिसाइट नाउ। सो इट इज वेरी स्पेशल। सो इन दिस मंथ इज नोन एज, सो दिस मंथ इज नोन एज दामोदर मंथ। कार्तिक मंथ बोला जाता है इसको। सो कार्तिक जो है, दैट इज कार्तिक मंथ इज स्पेशली कृतिका मीन्स राधा रानी का एक नाम है कार्तिक। राधा रानी का एक नाम है कृतिका, उनके नाम पे ये जो है ये दामोदर मंथ पड़ा है, ठीक है ना। सो नाउ वी विल डू दामोदर दामोदर अष्टकम वी विल रिसाइड। ओके, हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। Sir, how long is the class? अच्छा, क्लास इज लाइक लाइक 9:30 तक तो चलेगा। 9:30 उसके बाद आंसर्स लेंगे, इफ एनीबॉडी वांट्स, है ना। अगर आपको इनकॉन्वीनियंस है तो मतलब इफ यू कैन नॉट अटेंड तो आप लीव भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी वी विल बी रिसाइटिंग दिस दामोदर अष्टकम, है ना। So everybody is able to see the screen. Yes. Okay. So Sri Damodar Ashtaka. Okay. In the month of Kartik, one should worship Lord Damodar and daily recite the prayer known as Damodar Ashtaka, which has been spoken by Satyavata and which attracts Lord Damodara. Okay. तो अभी क्या करेंगे, हम इसको रिसाइट करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा दामोदर लीला भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नमामि स्मरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। नमामि स्मरं सच्चिद आनंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। यशोदाभियोलुख लाधवमानं परम रिष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या रुदंतं बपूर्नाथ रुदंतं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोज युग्मेन साटंक नेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तं
अखपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सत्तावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवदिं भा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिहा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्टलैः स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनसि अविरास्तम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदो प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादिष्टिवृष्टातिदिनं बतानु गृहणेश मामग्नमिति यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरः नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने तदीयोदरायाथ विश्वासदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं। सो ये जो है दिस इज दामोदर अष्टकम। ओके, सो ये दामोदर अष्टकम जो है दिस मंथ दिस दामोदर अष्टकम इज बीइंग रिसाइटेड, है ना, ये गाया जाता है। और जो दामोदर है, जब यशोदा माता कृष्ण को बांध लिए थे, ठीक है, जैसे एक बार क्या हुआ कि कृष्णा वॉज डूइंग सम नटखट लीलाएं कर रहे थे। जैसे कृष्णा वॉज डूइंग व्हाट, कि एक बार यशोदा माता क्या, हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से सुनेंगे क्या है। तो दामोदर लीला आई विल बी रिसाइटिंग नाउ। तो दामोदर लीला ये क्या हुआ था कि वन डे यशोदा माता ही वॉज चर्निंग द बटर। जैसे आप जानते हैं दूध से दही बनता है, दही से क्या बनते हैं, दही से जब उसको चर्न किया जाता है तो बटर बनते हैं, ठीक है ना। और जब बटर बनते हैं तो बटर से क्या आते हैं, मक्खन, मक्खन बोला जाता है उसको, ठीक है। सो अभी जो है, सो यशोदा माता उनके घर में क्या कर रहे थे, चर्निंग बटर। सो उसके बाद क्या हुआ, तो कृष्ण को बहुत भूख लगा था, ठीक है। सो कृष्ण यशोदा माता के पास आया और बोले कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, ठीक है। सो यशोदा माता क्या किया, सो उनको ही स्टार्टेड टू ड्रिंक मिल्क, उनको दूध पिलाने लग गए, ठीक है। सो अभी वो देखे कि यशोदा माता जो उनके जो किचन में दूध उबालने के लिए रख दिया था, ठीक है। तो उधर क्या है, दूध उबाल के नीचे गिर रहा था। तो कृष्ण जब स्तनपान कर रहे थे यशोदा माता के, तो उस समय यशोदा माता उनको रख दिया, ठीक है, ताकि उधर दूध ना गिर जाए, है ना, तो जलने से दूध ना गिर जाए। सो कृष्णा को नीचे रख के चले गए। सो अभी जो कृष्णा है वो बहुत ही भूखा था, वो बहुत क्रोधित हो गए, ठीक है। क्रोधित होके क्या बोल रहे हैं, कि बोल रहे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे इतना भूख लगा था और मुझे छोड़ के आप चले गए उधर, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। सो अभी कृष्ण क्या है, वो बहुत ही क्रोधित हो गया, ही बिकेम वेरी एंग्री। उनके जो लिप्स है एंड आईज, दे बिकम वेरी एंग्री। जो बोला जाता है कि द आईज ऑफ कृष्णा आर वेरी ब्यूटीफुल। जो भगवान के जो आईज है, दे आर कंपेयर टू लोटस फीट, लोटस पेटल्स, ओके, लोटस पेटल्स की तरह कंपेयर किया गया। एंड
उनके जो आंखों है वो कानों तक आते हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइक कमल लोचन अक्ष, आंखें जो है दे आर लाइक लोटस पेटल्स एंड दे दिस आईज कम टुवर्ड्स हर ईयर्स, आंखें तक आते हैं, है ना, कानों तक आते हैं, ठीक है। सो अभी उनके जो लिप्स है दे आर डिस्क्राइब्ड एज रेड एज द बिम्ब फ्रूट, बिम्ब फ्रूट की जैसा रेड है। और एक जगह पे क्या बोला गया कि कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल दैट बट ही इज वेरी डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। एक काला व्यक्ति, आप देखोगे काला व्यक्ति इतना सुंदर नहीं होता, बट यहाँ पे बोला जाता है कि जब आप वृंदावन में जाएंगे हमारे इस्कॉन टेम्पल में, सो वी हैव श्याम सुंदर। सो बोला जा रहा है कि ही इज एक्सट्रीमली डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, कितने काले हैं। सो काला व्यक्ति कैसे सुंदर हो सकता, बट बोला जाता है कि श्याम सुंदर। सो ही बट ही इज वेरी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है कृष्णा, है ना, ब्लैक भी है सुंदर भी है, ठीक है। और उनका जो फेस है दैट फेस इज एज ब्रिलियंट एज मिलियंस ऑफ मून्स, ओके। तो उनके जो फेस है दैट इज, जो उनके फेस से क्या आ रहे हैं कि मिलियंस ऑफ मून, जैसे मून आप देखेंगे, चंद्रमा, तो फुल मून लाइट आप देखेंगे दैट इज वेरी ब्रिलियंट, है ना, पूरे रात के अंधेरे में पूरा रोशनी कर देता है। ऐसे जो है उनके फेस से क्या निकल रहे, तेज निकल रहे, एंड दैट एफल्जेंस इज लाइक मिलियंस ऑफ मून, ओके, ऐसा एफल्जेंस है उनका, है ना। सो एंड उनके शरीर से क्या है, एक अलग ही खुशबू निकलते, बिकॉज कृष्णा ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान है, ठीक है। आवर बॉडी इज वेरी टेम्पररी, हम 100 साल तक ही जीते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है ये शरीर, और 100 साल तक भी एक ही फेस में नहीं रहता, वो क्या होता है कि डिटोरेट हो जाता है। जब आपका ओल्ड एज आएगा, ना ठीक से आप देख पाओगे, ना आप ठीक से खा पाओगे, जो भी खाओगे वो पचेगा नहीं, कान से ना सुन पाओगे, ना ठीक से चल पाओगे। तो हमारा ओल्ड एज आता है, बट कृष्ण इज एवर यूथफुल बोला जाता है, बिकॉज देयर इज नो, ही इज अनबॉर्न, ओके, अजा बोला जाता है भगवान को, एंड ही इज, उनका कोई कभी उनका ओल्ड एज नहीं है, ही इज एवर यूथफुल। जो भगवान है ही इज एवर यूथफुल, वो कभी मरते नहीं है, ठीक है, ऐसा, दैट इज स्पिरिचुअल नेचर बोला जाता है उसको। बट आवर बॉडी इज मैटेरियल, ओके, बट कृष्णस बॉडी इज स्पिरिचुअल, उनको बोला जाए सच्चित आनंद विग्रह, मीन्स भगवान के जो शरीर है दैट इज सत, सत मीन्स इटर्नल, ऑलवेज एवर लास्टिंग, बट आवर बॉडी इज टेम्पोररी, है ना। 100 साल तक ही जीते हैं, अभी 100 साल तक भी कोई नहीं जीता, ठीक है। सो सच्चित, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, we have to acquire knowledge from outside sources, okay। जैसे 10-20 साल तक कोई पढ़ता है, उसके बाद किसी को आईआईटी की डिग्री प्राप्त होता है, किसी को मेडिकल की डिग्री प्राप्त होते है, कोई यूपीएससी क्रैक करते हैं, कोई पीएचडी करते हैं, तो उसको 25-25 साल अच्छे से मेहनत करके पढ़ना पड़ते हैं, 8-8 घंटे, ठीक है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण मीन्स ईश्वर, द सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा, ठीक है। सो देयर मे बी मेनी कंट्रोलर्स, लाइक इन अ फैमिली द फादर इज द कंट्रोलर, इन अ स्कूल द प्रिंसिपल इज द कंट्रोलर, इन अ कंट्री द प्राइम मिनिस्टर इज द कंट्रोलर, okay। So many controllers are there, but who is the supreme controller? But बोला जा रहा है कि this universe is being controlled by Brahma ji, because he is the creator of this universe, okay। But who is the supreme controller? That is Krishna, because ब्रह्मा जी भी कहाँ से आते हैं, ब्रह्मा जी को बोला गया कि स्वयंभू, उनके कोई माता पिता नहीं है। जब महाविष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं, तो उनके जो नाभि कमल से, फ्रॉम द लोटस नेबल, ब्रह्मा जी के नाभि कमल से एक कमल के फूल खिलते हैं, ठीक है, उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है, ठीक है। सो ब्रह्मा जी का एक पिताजी से ही जन्म, महाविष्णु से जन्म हो गया, ठीक है। सो बट उनको भी क्रिएट कौन किया, कृष्ण, जो महाविष्णु के रूप में है। सो कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सच्चित आनंद। दिस बॉडी, आवर बॉडी विल गिव वेरियस सफरिंग्स,
जैसे कभी किसी का नाखून यहाँ से उखड़ जाएगा तो क्या होगा, बहुत कष्ट होगा, सबको बुखार आते हैं, ठीक है, व्हेन देयर यू, जब आपको बुखार आएगा, मीन्स बुखार मीन्स फीवर आते हैं, तो आपको कितना कष्ट होता है। अभी कुछ दिन पहले कोविड-19 आया था, ठीक है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाते, समझ लो एक टांग चला गया, कितना कष्ट होगा उसको, है ना, किसी को डायबिटीज हो जाते, कैंसर हो जाते, so this body is giving us continuous suffering, okay, so ये बॉडी को continuous suffering मिल रहा है ना, बट ये सब अब इट इज द, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि ये शरीर हमें सफरिंग देता है, बट इट ऑलवेज गिव्स अस सफरिंग, जैसे मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, स्ट्रेस, जहाँ पे आके लोग सुइसाइड भी कर लेते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं आईआईटी में क्लासेस लेने के लिए जाता हूँ, सो आईआईटी कॉलेजेस में, सो आई सी दैट द टॉपर्स, उसको सेकंड रैंक मिला, उसके लिए वो सुइसाइड कर लिया, देखो, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस दैट रियल नॉलेज। Material knowledge is right, but spiritual knowledge is also needed to keep ourselves happy, okay ना, because ऐसे होता है, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए कि always we should hear about the glories of the Lord, because that is human life. Human life means to know ourselves. Who are we? The difference between animals and humans is that animals are also eating, we are also eating. एनिमल्स ऑल्सो स्लीप, हम लोग भी सोते हैं, एनिमल्स भी बच्चे पैदा करते हैं ना, सो हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, बट if we restrict ourselves in these three things only, eating, sleeping and mating, so what is the difference between animal and ourselves? जो भगवत गीता का जो नॉलेज है, ये जो है नो एनिमल्स कैन रीड। अगर आप काऊ के पास बोलोगे कि आप भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ दो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप इसको यूटिलाइज करो अपने लाइफ में। दे हैव लिमिटेड कॉन्शियसनेस, बट ह्यूमंस दे कैन अपग्रेड देयर कॉन्शियसनेस, ओके। एंड व्हाट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस? दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, टू रिमेम्बर द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, भगवान को सुनना, भगवान के बारे में सुनना, है ना, भगवान की नामों का जप करना, कीर्तन करना, दैट इज द गोल ऑफ द स्पिरिट सोल, ओके। आपके जो पढ़ाई है, देखिए आप लोग, कोई पीएचडी का डिग्री भी प्राप्त करता है, ठीक है, समझ लीजिए 50 साल की उम्र में वो पीएचडी का डिग्री प्राप्त किया फिजिक्स के ऊपर, बट उसका वैल्यू कितने देर तक है? अगला 15 साल रहेगा, आफ्टर 60 ही विल हैव टू रिटायर। उसके बाद क्या होगा? 60 के बाद एट द एज ऑफ 70 ही विल बिकम वेरी ओल्ड, कुछ दिन के बाद वो मर जाएगा, ठीक है, फिर से उसको एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर से एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। बट इट इज नॉट द केस विद द स्पिरिचुअल स्टडीज। जब आप भगवत गीता का अच्छे से श्रवण करते हैं, भगवान की कुछ सेवा करते हैं, वो बोला जाता है कि दैट डज नॉट डिमिनिश, है ना। लेकिन आप जो कोई भी मटेरियल एक्टिविटीज करेंगे, आप पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, पीएचडी का डिग्री, समझ लो अभी इस लाइफ में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर्स बन गए, लेकिन जब आपका ओल्ड एज आएगा, आपका डेथ आएगा, योर डिग्रीज आर ऑफ नो वैल्यू, आपको फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आपको एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ह्यूमन लाइफ का गोल इज टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो है जन्म हो रहे, उसके बाद मृत्यु हो रहे, फिर से जन्म हो रहे, फिर से मृत्यु हो रहे, सो इसमें इस साइकिल से हमें बाहर निकल के कहाँ पे जाना चाहिए? देयर इज, दिस इज नोन एज मटेरियल वर्ल्ड, और इसके बाहर जो है देयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओके, भगवान के धाम बोला जाते हैं। एंड इफ एनीवन गोज टू द स्पिरिचुअल प्लैनेट, देयर इज नो डेथ, देयर इज अनलिमिटेड लाइफ, उसका कभी ओल्ड एज नहीं आएगा, ठीक है, he will be ever youthful, है ना। everybody loves youth because they are very fresh, like blooming buds of flowers, okay ना। so in the spiritual world there is no death, there is no old age, so how can we go to the spiritual world? so उसका जो टिकट है, that is when we chant the holy names of Lord. so भगवान के नामों का जप करते हैं, जब भगवान की श्रवण करते हैं, हरि नाम का श्रवण करते हैं, we get awareness that oh, there is some place known as a spiritual world. so this place is not the
and you can see this is very temporary place, but spiritual place is eternal. Okay, so Bhagavad Gita में बोला गया कि this material world is just 1/4 of the creation, 3/4 part is the spiritual world, 3/4 part क्या है, spiritual world है. Okay, so अभी जो है spiritual world is there, spiritual planets, Vaikuntha planets are there, जहाँ पे विष्णु लक्ष्मी जी रहते हैं, and there is special places like जो भगवान का भी धाम है, that is गोलक वृंदावन. ओके, सो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यशोदा दामोदर की लीलाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. सो आई विल बी रीडिंग नाउ. सो अभी जो कृष्ण, यशोदा माता क्या किया, कृष्ण को रख के चले गए, तो कृष्ण बहुत ही, अभी उनको क्रोध आ गया, ठीक है, ही बिकेम वेरी एंग्री. अभी कृष्ण क्या करना चाहते हैं, वो बोलते कि उनके आंखें जो है लाल हो गया, लिप्स जो है लाल हो गया. अभी वो क्या किया, एक पत्थर लिया और जिस मटका में यशोदा माता वॉज चर्निंग बटर, उस मटका को तोड़ दिया, ठीक है, और वहां से क्या मक्खन निकाल के खाने लग गया, ठीक है, कृष्ण खाने लग गया, ठीक है ना. और अभी जो है, अभी वो क्या कर रहे, आंखों में झूठे आंसू लेके वो रोने की नाटक कर रहे. देखो मुझे इतना भूख लगा था, तुमने मुझे छोड़ के चले गए यशोदा मैया. तो अभी मैं देखो ये जो है मक्खन से ही काम चला रहा हूँ और मुझे इतना भूख लग रहा है कि मुझे रोना आ रहा है, ठीक है. तो ऐसे वो सोच रहे. जब यशोदा माता ने आया उस रूम पे, तो कृष्ण देखा कि, यशोदा माता देखा कि ये तो बहुत ही शरारती हो गया है ना. जब ऐसे यशोदा माता को देखा तो तुरंत भाग गया उधर से, और भागने से पहले क्या लेके गया, देखो तब क्या होता था कि फ्रॉम द सीलिंग्स, रूफ से क्या होते थे, रोप्स, रोप्स के अंदर, रोप्स का जो झूला बनाया रहता है, और रोप्स के अंदर मक्खन का बड़े बड़े पॉट रहता था. सो कृष्ण क्या किया, ऊपर से भी एक पॉट निकाल के बाहर चले आए, और बाहर आके क्या कर रहे, एक उखल है, उखल मीन्स मोटर ग्राइंडर, जहाँ पे मीन्स जो धान होता है ना उसको राइस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको मार मार के. सो उखल के ऊपर बैठ गया, और कृष्ण और जो मक्खन जो है खुद भी खा रहे, और जो वृंदावन के जो बंदर है वो बंदर मंकीज को भी खिला रहे है ना. सो अभी जो है कृष्ण देखा कि अभी वो खा रहे हैं, ठीक है. अभी जो मंकीज है, दिस मंकीज, एक मंकी देख लिया कि यशोदा माता इज कमिंग. सो कृष्ण को इशारा कर रहे, देखो कृष्ण, योर मदर इज कमिंग, योर मदर इज कमिंग. सो ऐसे इशारा किया. सो कृष्ण क्या क्या, यशोदा माता पीछे पीछे आ रहे हैं ना, धीरे 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 आ रहे. अभी कृष्ण को पकड़ने वाले हैं, तो कृष्ण देखा कि एक बंदर जो है उनको इशारा कर दिया. सो बंदर को लेके बंदर, कृष्ण वहां से भाग गए, और यशोदा माता की उनके पीछे पीछे भागना चालू कर दिया, ठीक है. और कुछ देर के बाद यशोदा माता उनको पकड़ लिया, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे कि जब यशोदा माता पकड़ लिया, वो देख रहे कि ये देखो ये कृष्ण इतना शरारत करते, बट ये बहुत ही सुंदर है. जब उन्होंने पकड़ा है कृष्ण को, वो देख पा रहे थे कि ही इज कंपेयर टू ब्लू लोटस इन द यमुना, ठीक है. यमुना जो है, जब आप वृंदावन में जाएंगे, यू कैन सी यमुना, वृंदावन में आप जाएंगे जब, सब क्या देख पाएंगे, देयर इज यमुना रिवर. ओके, और यमुना रिवर में रात में देयर आर लाइक ब्लू लोटसेस आर देयर, एंड कृष्ण का जो कॉम्प्लेक्शन है, इट इज लाइक डेंस डार्क मॉनसून क्लाउड है. जैसे आप देखेंगे कि क्लाउड जो है जिसमें वाटर नहीं रहता, दे आर व्हाइटिश इन कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, व्हाइट कलर रहते हैं. अगर वो जो है क्लाउड इज फील्ड विथ वाटर, दैट इज वेरी डार्क इन कॉम्प्लेक्शन. वो ऐसा जो कॉम्प्लेक्शन वो कृष्ण का है, यशोदा माता देख पा रहे थे, ठीक है ना. एंड उनका जो है वो एक छोटा सा, एंड ही इज श्यामा सुंदर. काला व्यक्ति कभी सुंदर नहीं होता, बट उनके जो फेस है, इट इज लाइक एफल्जेंट, लाइक मिलियंस ऑफ मून की जैसा वो एफल्जेंस निकल रहे थे उससे, है ना. तो ऐसा था भगवान की सुंदरता. जब यशोदा माता उनको पकड़ा, वो देख पा रहे थे, ठीक है.
बोले कि इतना सुंदर लड़का है लेकिन इतना शरारत क्यों करते हैं, ठीक है। यस यस यस, रिधिमा पूछ रहे थे, ओके हाँ। सो भगवान के जो एवरी लिम्ब ऑफ गॉड कैन एक्ट एज द लिम्ब ऑफ अदर एक्ट, मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हमारे वी कैन सी विद द आईज, ठीक है, बट वी कैन नॉट ईट विद द आईज, वी कैन स्पीक विद द माउथ बट वी कैन नॉट हियर विद द माउथ, है ना। बट भगवान के जो भी इंद्रिय है, ठीक है, दे कैन डू द एक्टिविटीज ऑफ द अदर सेंसेस। इसको क्या समझ सकते हैं हम लोग, इसको समझ सकते हैं कि जैसे भगवान क्या कर सकते हैं, अपने आंखों से सुन सकते हैं। क्या हम लोग आंखों से सुन पाएंगे क्या, नहीं सुन पाएंगे। बट ये जो है भगवान और हमारे बीच में जो है डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, भगवान क्यों बोला जाता है, भगवान कृष्ण को भगवान, बिकॉज उनके पास जो भी, बिकॉज ऑफ, कोई बताना चाहेंगे कि कृष्ण को भगवान क्यों बोला जाता, मीन्स भगवान क्यों है। कोई है क्या इधर। भगवान, उनको कृष्ण को भगवान इसलिए बोला जाता है, भगवान उसको बोलेंगे जिसके पास सब कुछ है एंड दैट इज पूर्ण मात्रा में है, ठीक है ना। लाइक कृष्ण को हम भगवान बोलते बिकॉज ही इज ऑल फेमस। अभी देखिए कोई भी सुपरस्टार होते हैं, ठीक है, ओके, वो बोल रहे, केतब बोल रहे कि ही इज अवतार ऑफ विष्णु जी, ओके। सो ही सब ना, ये बोला गया शास्त्र में कि कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल अवतार, ठीक है। विष्णु भी कृष्ण से आते हैं, ठीक है, शिव जी भी कृष्ण से आते हैं, ब्रह्मा भी कृष्ण से आते हैं, हम लोग भी इवन कृष्ण से आते हैं, ठीक है। सो कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल अवतार, ठीक है। एंड ह्यूमन लाइफ का सक्सेस तभी है व्हेन यू डू अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा मीन्स when we inquire, हम जब when we become interested to hear about the pastimes of Lord, भगवान के बारे में जब सुनना चाहेंगे, that is the perfection of human life, है ना। so अभी जो मैं क्या बोल रहा था, अच्छा, तो कृष्ण भगवान क्यों बोला जाता है उनको, बिकॉज ही इज ऑल फेमस, नो वन कैन बी मोर फेमस देन कृष्ण। तो कृष्ण जो भगवत गीता बोले थे 5000 साल पहले, अभी भी एवरीवन इज रीडिंग भगवत गीता। जो अभी हम लोग अभी अलग अलग स्कूल्स में जा रहे, more than 15,000 students, they have took Bhagavad Gita from Nasik district, okay। so beauty, जो भी ब्यूटी है भगवान का, ही इज ऑल ब्यूटीफुल, ओके। ऑपुलेंस, उनको लक्ष्मीपति बोला जाता है। ऑल द मनी, जैसे अभी बोल सकते कि हु इज द टॉप मोस्ट मीन्स बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर, करोड़पति कौन है, दैट इज आप बोल सकते इंडिया में मुकेश अंबानी है। बट कृष्ण को माधव बोला जाता है, माधव मीन्स लक्ष्मीपति। सो लक्ष्मी जी उनके वाइफ है, तो उनको क्या कमी है, ठीक है ना। सो इज ऑल ऑपुलेंस इज विथ हिम, ओके। स्ट्रेंथ, अगर देखो कृष्ण का जो स्ट्रेंथ है, इज ऑल मीन्स ही हैज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ओके। जैसे गोवर्धन पर्वत को 7 साल के उम्र में नाखून के जो लेफ्ट हैंड के लेफ्ट लिटिल फिंगर के नाखून से उठा लिया था जो कृष्णा 7 साल की उम्र में। देखो कोई कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर्स हो जाए, ठीक है, वो अपने लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर के नेल में एक ब्रिक भी नहीं उठा सकते, ठीक है। बट कृष्ण क्या क्या पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो अब जब वृंदावन जाएंगे लोग क्या करते, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज लाइक दैट ना। तो कृष्णा इज ऑल स्ट्रेंथ, उनके पास इतना स्ट्रेंथ है, ठीक है। इंटेलिजेंस देखो, बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का जो पूरा शरीर है, इट इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि तत्व से बना है। बट हमारे जो क्या है, हमारा जो शरीर है इसमें, इन आवर हेड देयर इज 2 ग्राम इंटेलिजेंस इज देयर, ओके। बट ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि से बना है, और ब्रह्मा जी को किसने बनाया, महाविष्णु ने बनाया। तो he is having all intelligence and all renunciation, ठीक है। renunciation means जो साधु लोग करते हैं, ठीक है। साधु लोग क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते,
मीन्स अलग अलग चीज है। मीन्स रेनंसिएशन मीन्स जो दे हैव नो टेस्ट फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मीन्स मनी के प्रति, मनी, home and so many things are there. So the sadhus they leave money, home and all these things, okay na? So this is renunciation. जो कृष्ण is more renunciant than a साधु। और एक जो साधु है वो सब कुछ छोड़ देता है पूरा संसार के, बट वो क्या करते, वो ध्यान में क्या, भगवान की चिंतन करते। सो अगर भगवान ग्रेटेस्ट रेनंसिएंट मीन्स नहीं होता, बैरागी बोला जाता है, बैरागी। सो बैरागी मीन्स, अच्छा ये तो थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, अभी जो है अभी थोड़ा बताते हैं और, है ना। सो क्या है, तो भगवान इसलिए बोला जाता है कि भगवान को, बिकॉज ही इज ग्रेटेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट। जो भी चीज आप सोच सकते हो उसमें सबसे टॉप मोस्ट में कृष्णा आते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट, ओके। सो उनके ब्यूटीफुल आईज आर देयर दैट आर कंपेयर टू लोटस पेटल्स, ओके, एंड ही इज लाइक अ brilliant effulgent blue lotus in the night of Yamuna in a full moonlight। ठीक है, आप कभी वृंदावन में जाएंगे, यमुना के तीर में, वहां पे रात को आप ब्लू लोटस देख पाएंगे, और इन द मूनलाइट दे आर वेरी शाइनिंग। वो जो शाइन है वो भगवान की जो है, भगवान की तरह तुलना किया गया है ना। सो कंपेयर टू द ब्लू लोटस, ओके, एंड ही इज वेरी सॉफ्ट, ओके। एंड अगर कोई सेंटेड पार्टिकल्स आप देखते हैं, मीन्स, एक सेकेंड, अगर बोले कि बेस्ट एरोमेटिक सब्सटेंस जो है, मीन्स जिससे बहुत खुशबू आते हैं, जैसे कस्तूरी है, कस्तूरी इज वेरी फ्रेग्रेंट, चंदन, कुमकुम, आगुरु, मस्क, ओके, सो दीज आर वेरी फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स, ओके, उससे बहुत खुशबू निकलते हैं कस्तूरी, चंदन से, ठीक है। अगर बोला जा रहा है कि ये सारे जो है एरोमेटिक सब्सटेंस को क्रश करके एक साथ भी ले लिया जाए, ठीक है, और उसका जो सेंट है, तो भगवान के शरीर से जो सेंट निकलता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है, उसको भी हार मनाते हैं कस्तूरी के सेंट को, ओके ना। So every limb of Krishna, every limb of God can perform the activity of the other limb. Limb means senses. Like हमारे जो आंखों से हम लोग सिर्फ देख पाएंगे, बट भगवान आंखों से सुन भी पाएंगे, आंखों से खा भी पाएंगे, ये भगवान के क्वालिटीज है, ठीक है। कानों से भगवान चल पाएंगे, हम लोग कानों से चल पाएंगे क्या, हम कानों से सुन पाते हैं, ठीक ठीक से ना। और सब कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, अगर कोई दूसरे रूम में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, बट भगवान के जो है, भगवान इसलिए बोला जाता है कि ही कैन डू एवरीथिंग, ओके। तो आपके कानों से भी कानों से भी भगवान चल पाते हैं, ठीक है। नाक से वो बोल पाएंगे, ठीक है, भगवान क्या कर सकते हैं, नाक से बातें भी कर सकते हैं, आंखों से भी बातें कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड भगवान, ओके ना। सो भगवान के जो क्या है, कृष्ण के जो तीत है, इट इज लाइक पर्ल्स। पर्ल्स आप देखे होंगे तो वाइट, वेरी वाइट इन कॉम्प्लेक्शन पर्ल्स होते हैं। सो उनके जो नेल्स है, दे आर लाइक डायमंड्स में। और उनके जो नाखून है, उनके नाखून से क्या निकलते है, एक इफल्जेंस निकलते, एक रोशनी निकलते है, दैट इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ डायमंड्स। अब एक डायमंड देखोगे तो डायमंड जो है, जब व्हेन देयर इज लाइट वो इतना चमकता है, ठीक है। तो भगवान के नाखून से मिलियंस ऑफ डायमंड्स की क्या निकलते हैं, एफल्जेंस निकलते हैं, ठीक है ना। तो एक पीकॉक फेदर अपने जो है ना सिर पे लगाते हैं, मयूर पंख बोलते हैं जिसको, ओके ना, भगवान। सो एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मैं उसको रिसाइट करना चाहता हूँ, दैट इज, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। सो यहाँ पे क्या बोल रहे कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मीन्स हियर Krishna is telling to Narad Muni that
मैं बैकुंठ में नहीं रहता, ठीक है। योगिनम हृदय शुभा, ना योगी के हृदय में रहता हूं मैं कहाँ पे रहता हूँ? तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः, जहाँ पे when my pure devotees they chant the holy names, they discuss my topics, discuss my form, my pastimes, जो भगवान की, जहाँ पे हरि कथा होते, भगवान की गुणों का चर्चाएं होते, भगवान की लीलाओं का गुणगान होते, वहां पे आई एम प्रेजेंट। ओके, सो ये भगवान यहाँ पे कौन बोल रहे? कृष्ण इज टेलिंग टू नारद मुनि। ओके, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनम हृदय शुभा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। ठीक है, और एक श्लोका है कि श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तःस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। Means the goal of human life, the perfection of human life is when we hear the pastimes भगवान के, जब when we hear the message of Bhagavad Gita, that is the goal of human life. Okay, okay, so everyone is asking, okay na? So we will end the class in just 5 minutes. Okay na? So बोला जाता है कि when we hear the message of God, जब हम भगवान के मैसेज को सुनते हैं, so that destroy all the impurities from our heart. ठीक है, so अभी जो है this month is कार्तिक month, so यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग आपको बताएंगे कि this is a special month, so इसमें हम कुछ स्पेशल एक्टिविटीज हमें करना चाहिए। so हमें जो है क्या क्या करना चाहिए? वी कैन हियर अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू कैन कम टू आवर इस्कॉन टेम्पल्स, हियर यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज। यहाँ पे 7:30 एवरी डे वी डू दामोदर अष्टकम, जिसको मैं रिसाइट किया था, और भगवान के दीपदान किया जाता है। ठीक है, so, थोड़ा सुबह जल्दी उठ सकते हैं और भगवान के नामों का थोड़ा जप कर सकते हैं। इट विल मेक योर इंटेलिजेंस वेरी शार्प, ओके, एंड यू इंटेलिजेंस एंड माइंड वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। जैसे हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, दैट इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का हम लोग जपा करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? दीपदान कर सकते हैं भगवान की। इस महीने में दीपदान करने का क्या बेनिफिट है? बोला स्कंद पुराण में, ब्रह्मा जी इज टेलिंग टू नारद दैट if anyone do deepdan in this month of Kartik, okay, he will never see the face of Yamraj. ठीक है, यमराज की उसको शक्ल देखने का जो सौभाग्य है वो नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, जब वो शरीर छोड़ेगा, फोर विष्णु दूतस विल कम, और जो विष्णु दूत है मीन्स जैसे एसोसिएट्स ऑफ विष्णु, उनके भी 4 हाथ होते हैं। ठीक है, और 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं। व्हेन ही विल लीव दिस बॉडी, ये विष्णुदूत आएंगे, है ना, और उनको भगवान के धाम लेके जाएंगे, जो भगवान को इस मंथ में एक दीप दान करते हैं। ठीक है ना। और अभी शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी जो है पार्वती को बोल रहे हैं, अगर कोई भगवान को इस महीने में दीपदान करते हैं तो सारे यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त हो जाते। जैसे कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ। ठीक है, और ये बोला जाता है कि so we have ISKCON temples in more than thousand ISKCON temples all over the world, and कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, दुबई, वहां पे भी दीपदान होते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स दे एवरी डे कम टू ऑफर लैम्प्स। ठीक है, अभी इंडिया में तो हमारे हर टेम्पल्स में होता है, बाहर भी ऐसे होता है कि एवरीवन इज डूइंग दीपदान, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे टेक प्रसाद। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं? एक भगवान के लिए एक सुंदर माला बना के एवरीडे वी कैन ऑफर। बोला जाता है कि व्हेन एनीवन गिव्स ऑफर्स फ्लावर्स टू द गार्लैंड, ठीक है, मीन्स भगवान को कोई माला पहनाते हैं तो उसका क्या होता है?
कुछ ये तो बताएंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीज है। इफ एनी बॉडी हियर्स द मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम, हिज 100 generations get delivered, ओके ना, लाइक दैट। अच्छा, अभी जो है हम लोग थोड़ा सा ये दीपदान का थोड़ा एक्सप्लेन किया। कुछ प्रश्न है किसी का? Excuse me, sir. आप बताओ। What is the meaning of Devdan? Dipdan. Devdan. दीपदान मीन्स भगवान को दीप दिखाना, ठीक है। जो घी का दिया होता है उसको भगवान के जैसे दीपदान बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कि भगवान के चरण में 4 बार दिया को घुमाना, ठीक है। और उसके बाद नेवल मीन्स नेवल में 2 बार घुमाना, फेस में 3 बार घुमाना, और उसके बाद पूरा शरीर में 7 बार घुमाना घुमाना, ठीक है। जैसे दामोदर मंथ में वो यशोदा दामोदर को हम दीप दिखाते हैं, ठीक है ना। वो आद्या कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, do we have to do Deepdan every day हाँ, in this month? yes, we do Dipdan in this month every day at night, morning and night. If you it is available, you can do. अगर आपके घर में कृष्ण जी का कोई डीटीज है, ठीक है, विग्रह है, तो उनके सामने ऐसे दीपदान कर सकते हैं। 4 बार उनके चरण में, 2 बार उनके नाभि में, 3 बार उनके फेस में, पूरा 7 बार उनके पूरा शरीर में। ये जो सीक्वेंस है दीपदान करने का, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? ओके, सो अभी जो क्या करेंगे, वी विल एंड इन जस्ट 2 मिनट्स। अभी जो है, अभी एक छोटा सा हम सॉन्ग गाएंगे, जो सॉन्ग के बाद यू कैन टेक प्रेस, यू कैन लीव द मीटिंग, ओके। सो दिस सॉन्ग इज वेरी पावरफुल। ये सॉन्ग हम लोग हर रोज ही गाते हैं, क्लास के पहले गाते हैं, बट अभी क्लास के बाद में गा रहे हैं, ठीक है ना। सो अभी इसको मैं शेयर भी करता हूँ, ठीक है। Herculean means Herculean means one can perform very tedious task, means very heavy task he can perform, okay ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके। एक छोटा सा है जो भगवान की हम लोग छोटा सा भजन है 4 लाइन की, इसको करके वी विल एंड द क्लास, ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, যমুনা তীরবন চারি, যমুনা তীরবন চারি। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, গোপীজন বল্লভ गिरिवर धारी। और आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र को भी जपा कर सकते हैं एवरी डे। ऑल द स्टूडेंट्स यू कैन चैंट एटलीस्ट 5 to 10 minutes। जो आई चैंट 16 राउंड्स, जिसमें 2 घंटे हम लोग जपा करते हैं, बट यूर स्टूडेंट्स यू आर हैविंग वेरियस स्टडीज, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 to 10 minutes चैंटिंग कर सकते हैं। एंड दैट चैंटिंग इज, जो अभी मैं आई विल सिंग द चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। ये हरे कृष्णा आप चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर attentively hearing the lectures।
और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, रिधिमा कुछ बोलना चाहते हैं। सर हमारा वैल्यू कॉन्टेस्ट कभी है मतलब? अच्छा अच्छा, उसके बारे में बता देता हूँ। सो ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट? No, sir.